Let's do Mangalacharan very quick. Hare Krishna, dear devotees, Anvat Pranam, Jai Shri Prabhupada. Please accept my humble obeisances. Thank you for joining. We're reading from Sri Bhagavad Gita, chapter 16, the divine and demonic natures. We'll continue our reading. Let's do prayers quickly. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sadrajatam Sahagana Raghunatham Satam Sajivam Sadhvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahaganalita Shri Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindaveshwari Vishwanusute Devi Pranamami Vancha Kalparubhyascha Kripasindhubhaya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Iti Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachatya Deshikarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatripatam Vande Shri Gurum Deenataranam Paramananda Madhavam Krishna Chaitanya Ishwaram Guruve Gaur Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Namo Namah. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Bol. Thank you everybody for joining. Okay, so we were reading chapter 16. We had read till verse 12, I think. Yes. Verse 12. So we'll continue from there. Anybody has any comments, questions from previous reading, hearing, realizations, corrections, anything? Okay. Hare Krishna. I want to also welcome Mohit Prabhu. I see that he is there today. I think last time you were not able to attend, Prabhuji, but I'd send the recording. So if you have any questions from that discussion last time, as you were not here, or from today, feel free to ask. It's an open forum. I know that you have this is kind of new for you. I mean, so any questions are welcome. Hare Krishna. Sure, Nirbhay Prabhuji. Thank you. I will. Thank you, Prabhuji, for joining us. We are very, very fortunate to have you and all the other devotees. Let's start with so we finished. So Krishna was describing the demonic natures of the people, right? थोड़ा हिंदी में करते हैं चलेगा, right? Mixed language, is that okay? Okay. So Krishna 12th verse तक बता रहे थे कि demonic या आसुरी गुण क्या होते हैं लोगों में, right? और क्यों होते हैं, लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो हमने कंक्लूड यहाँ पे किया था कि लोग सोचते हैं, डेमोनिक लोग जो होते हैं, आसुरी भाव जिनका रहता है, वो ये सोचते हैं कि ये सारा संसार ये काम भावना से ही पैदा होता है. वर्ल्ड इज अराइजिंग फ्रॉम लस्ट, इट रन्स बिकॉज ऑफ लस्ट, मतलब कि लोगों के आपस में आने से, स्त्री पुरुष के आपस में आने से, संभोग करने से, उसी से ही ये संसार चलता है. इट रन्स बिकॉज ऑफ लस्ट. And the goal is also just to fulfill our desires and lust, etc. So basically the world is meant for sense gratification only. So that is the understanding of the demonic people. और इसीलिए वो simple activities या पाप कर्म करते रहते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी वेल्थ वगैरह इकट्ठी कर सकें और फिर उसको अपने ही ऊपर या अपने परिवार के जनों पे स्पेंड करके सेंस एंजॉयमेंट कर सकें, राइट? कुछ अच्छा खा लें, कुछ देख लें, बस अपनी इंद्रिय तृप्ति ही कर सकें.
है ना, खाने की, देखने की, सुनने की, फील करने की, स्मेल करने की, बस यही, या कहीं घूम लेंगे, कुछ अपनी बॉडी से ही बस इंजॉयमेंट में लगे रहते हैं वो लोग। सो दैट इज कॉल्ड सेंस इंजॉयमेंट। तो वो उसी सेंस इंजॉयमेंट के लिए सब काम करते हैं, वही उनकी जिंदगी का लक्ष्य है, उसके उनके हिसाब से संसार में बस एक यही करने लायक है। They don't have any faith in any supreme power or any authority कि कोई हमारे ऊपर कोई higher power भी है, कोई भगवान है, हमारे अंदर परमात्मा है जो सब देख रहे हैं, ऐसा कोई उनको faith नहीं होता, कोई विश्वास नहीं होता। नो फेथ इन बर्थ और डेथ, कि यही एक जन्म है, इसमें जो करना है सब अच्छे से कर लो, बहुत एंजॉय कर लो, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट? एक ही बार मिलती है जिंदगी, तो उसको जी लो पूरा, जी भर के उसमें जो ऐश करनी है, खाओ पियो ऐश करो, मौज करो, यही करना है, क्योंकि उसके बाद तो बस खत्म हो जाती है बॉडी एंड देन यू आर फिनिश्ड. So that is why they are engaged in so much sense enjoyment and sinful activities also. So they're just following their sensual urges. मतलब जो मन करता है, अच्छा कुछ खाने का मन कर रहा है, वो खाने के पीछे जुट जाएंगे कि कैसे खाएं, कुछ छूने का मन कर रहा है या कुछ देखने का मन कर रहा है, तो कुछ भी अपने बॉडी में डालेंगे थ्रू दीज, कृष्णा सेज, ये जो 9 गेट्स है हमारी बॉडी के, उसमें से कुछ भी डालेंगे, राइट? बिना किसी कंट्रोल के, रिस्ट्रिक्शन के, not thinking that this could have some repercussions or some consequences. No, they're just following their sensual urges, very much like an animalistic life. जैसे पशु भी वही करते हैं कि बस अपनी sensual urges को पूरा करना, right? Eating, mating, defending, and sleeping, right? 4 चीजें जो पशु भी करते हैं, eating, sleeping, mating and defending. So they are only engaged in those 4 things. So there is no hankering for higher knowledge कि इससे भी बड़ा कुछ है, कोई आध्यात्मिक संसार है या आध्यात्म के लेवल पे भी काम करना है, बॉडी ही सब कुछ नहीं है, हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है, इस तरह का कोई ज्ञान नहीं है, और कोई ज्ञान के लिए कोई हैंकरिंग भी नहीं है, कोई अपना जब मन करेगा उठेंगे, जब मन करेगा सोएंगे, जहां मन करेगा जाएंगे, निकृष्ट से निकृष्ट, लो से लो काम में एंगेज होंगे, राइट? सो दैट इज द demonic qualities. Those are the demonic understanding. तो ऐसा क्यों करते हैं? So if this is clear, then let's move on to the next verse from 13 to 15. They are together. We'll do all these 3. Then we'll take 16, 17, 18 together actually. So, okay, let's start. We'll do lead and follow. Bhagavad Gita 16.13 to 15. Idam adya maya labdham. Idam adya maya labdham. Imam prapasye manoratham. Imam prapasye manoratham. Idam astidam api me. Idam astidam api me. Bhavishyati punardhanam. Bhavishyati punardhanam. Asau maya hata shatrur. Asau maya hata shatrur. Hanishe cha parannapi. Hanishe cha parannapi. Ishvaro aham bhogi. Ishvaro aham bhogi. Siddho aham balvan sukhi. Siddho aham balvan sukhi. Adyo bhijanvanasmi. Adyo bhijanvanasmi. Ko anyo asti sadrisho maya. Ko anyo asti sadrisho maya. Yakshay dasyami modishya. Yakshay dasyami modishya. Iti ajnana vimohita. Iti ajnana vimohita. This is very powerful verses. Let's read the translation. Krishna is describing what does a demonic person think. So he's continuing on that same thought. What does demonic person think? Prabhupada has not given purport on it, but he has discussed this in the next following purports. But we'll talk about it. Who wants to read this? I can read, Mataji. Yes, Mataji, please. Hari Bol. The demonic person thinks, so much wealth do I have today, and I will gain more according to my
schemes. So much is mine now, and it will increase in the future more and more. He is my enemy, and I have killed him, and my other enemies will also be killed. I am the Lord of everything. I am the enjoyer. I am perfect, powerful, and happy. I am the richest man, surrounded by aristocratic relatives. There is none so powerful and happy as I am. I shall perform sacrifices, I shall give some charity, and thus I shall rejoice. In this way, such persons are deluded by ignorance. Hari Bol. Hari Bol. So let's see the Sanskrit and see how this shloka is. So the first verse, verse 13, the demonic person is saying, Idam adya maya labdham, that I have achieved all this myself. कि मैंने अपने abilities, अपनी education, अपने endeavors, अपने hard work के basis पे ये सारा प्राप्त किया, ये सारे धन कमाया है. मतलब कुछ भी धन कमाया हो, property कमाई हो, name हो, fame हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी कमाया है वो मैंने अपने दम पे कमाया है. ऐसा लोग बोलते हैं ना, मैंने अपने दम पे बन के दिखाया है, ये सब मैंने अपने किया है. ठीक है. So somebody might say, so what is wrong with it? ठीक है, किया अपने बल पे ही किया है, right? अपना endeavor किया है. That's true. Yes, कुछ endeavor किया है. But remember that when we have talked about this many times, I think Priyanka Mataji mentioned this in the last class, that we are not the doer. This concept, that concept of doership has been explained in 5th chapter before, right? We are not the doer, कि हम actual करता कौन है, हम सिर्फ कार्य करते हैं, लेकिन वो succeed होता है कि नहीं. जैसे आपने कुछ काम करना शुरू किया, उसके बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, धन मिलेगा कि नहीं, नाम मिलेगा कि नहीं, प्रतिष्ठा मिलेगी कि नहीं, वो सब आपके कंट्रोल में नहीं है. हो सकता है कि आप वही काम करो और फिर पहले आपको अभी तक धन मिल रहा था और अभी सडनली आपको आपका बैंक किसी वजह से आपका कुछ लॉ सूट हो जाए, आप बैंकरप्ट हो जाओ, या आपका सेम काम से ही पहले आपका नाम हो रहा था और सब सडनली वो काम गलत हो गया आपसे और आपका नाम खराब हो गया. सब लोग आपका पहले वाहवाही करते थे, वही लोग अब आपको गलत बोलने लगेंगे, राइट? सो जो भी हम काम करते हैं, सिर्फ वो काम करना ही हमारे कंट्रोल में है, राइट? सिर्फ वो एंडेवर हमारे कंट्रोल में है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हमें बहुत फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मिलता है. और सबसे इंपॉर्टेंट तो फैक्टर है लॉ ऑफ कर्मा. तो जो लेकिन डेमोनिक लोग हैं, दे डू नॉट बिलीव कि कोई भगवान है जो कोई भगवान है जिसका इसमें हाथ हो सकता है, परमात्मा जो ये सब अरेंजमेंट करता है कि हमारा कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या कोई कर्मा है, कोई हायर रूल है, हायर पावर है ना. ये मटेरियल नेचर है जो हमें गवर्न करती है, भगवान है जो हमें गवर्न करते हैं, देवी देवता है जो हमें गवर्न करते हैं, परमात्मा है जो हमें अंदर से गाइड करते हैं, पुराने कर्म है हमारे जो हमें अंदर से गाइड करते हैं. तो हमारा एक एक्शन जो है वो एक बहुत छोटी चीज है इन द होल transaction of whether the result happens or not, whether even we are able to do that action or not. हो सकता है हम कुछ करना चाहें, लेकिन अगर भगवान की सैंक्शन नहीं मिले तो वो एक्शन हो भी नहीं पाए, ऐसा भी होता है, राइट? सो लेकिन वो आसुरी भाव वाला व्यक्ति सोचता है कि मैंने बहुत अपने बल पे ये सब कमाया है और मैं और भी अपनी मनोरथम, इमम प्रापस्य मनोरथम, इसी तरीके से मैं और और अर्जित करके अपने मनोरथ, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी मन की इच्छाएं, डिजायर्स पूरी करते रहूंगा. तो इसी तरीके से मैं अपनी वेल्थ इंक्रीज करते रहूंगा. इट विल कीप इंक्रीजिंग मोर एंड मोर. So much wealth do I have today, and I will gain more according to my schemes. So जो मेरी schemes हैं, जो भी मेरी activities हैं, चाहे वो sinful activities हैं या जो भी हैं, मैं उनके fruitive activities हैं, उनको करते जाऊंगा और मुझे मैं बढ़ाते जाऊंगा अपनी desires और अपनी results मुझे मिलते जाएंगे, धन, property सब कुछ मिलता जाएगा. Then he says, what else does he say? He is my enemy and I have killed him and my other enemies will also be killed. कि मेरे जो भी मेरे पहले तो उसके enemies होते हैं. So सबसे important बात, demonic लोगों के enemies रहते हैं, जो devotees होते हैं या जो देवी गुण रखते हैं, उनके तो enemies नहीं रहते, right? Because they know
that everything that is happening in this world is according to their karmas and according to the rules of the material nature, according to the three modes of material nature. जैसे कि एग्जाम्पल आता है युधिष्ठिर महाराज के बारे में, भागवतम बोलती है कि युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु बोलते हैं. अब कोई कहेगा इतनी वॉर हुई, उन्होंने इतने लोगों का संहार किया, इतनी वॉर की, तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि उनके एनिमी नहीं है? लेकिन फिर भागवतम उनको अजात शत्रु क्यों बोलती है? अजात शत्रु का मतलब है कि उनको किसी से कोई शत्रुता नहीं है, उनको किसी से कोई एनवियसनेस नहीं है, उनको किसी का बुरा नहीं चाहिए, उनको दुर्योधन का, कौरवों का भी बुरा नहीं चाहिए था, उनको उनसे भी कोई शत्रुता नहीं थी, राइट? लेकिन धर्म एस्टैब्लिश करने के लिए, धर्म स्थापित करने के लिए वॉर की, वो अलग बात है, लेकिन शत्रुता नहीं थी. ऐसे ही प्रहलाद महाराज का भी एग्जाम्पल आता है, ही इज ऑल्सो अजात शत्रु. अजात शत्रु मतलब कि उनका भी कोई शत्रु नहीं है. चाहे हिरण्यकश्यपु ने उनको कितना टॉर्चर किया, टॉर्मेंट किया, लेकिन जब नरसिंह भगवान आए तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि इनको जाने दो, इनको लिबरेट कर दो, इनको डिलीवर कर दो. उनको उनसे भी कोई शत्रुता नहीं थी. ही न्यू कि माय फादर इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस डेमोनिक प्रोपेंसिटीज, दीज डेमोनिक क्वालिटीज. ही इज नॉट सीइंग थिंग्स राइट. ही इज वेरी मच अंडर द कंट्रोल ऑफ मटेरियल नेचर, right? So similarly in our life also, you know, we sometimes think this person is good, this person is bad. और हमारी good और bad की definition basically इस हिसाब से होती है कि जो हमारे goals के रास्ते में आता है, हमारी sense gratification या हमारी desires पूरी करने के रास्ते में आता है, वो हमारा शत्रु बन जाता है, right? कि मेरी, क्योंकि हम सब में दानवी गुण है, right? मुझे अपना तो पता है दानवी गुण बहुत हैं, दानवी गुण से भरे पड़े हम लोग, right? कि हमें लगता है कि ये मेरी डिजायर है, मुझे ये डिजायर पूरी करनी है, या ये मेरा गोल है, ये गोल मुझे पूरा करना है, पर ये व्यक्ति की वजह से मेरा ये गोल पूरा नहीं हो रहा, या ये डिजायर पूरी नहीं हो रही, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन पूरी नहीं हो रही, तो वो व्यक्ति मेरे लिए बुरा बन जाएगा, वो व्यक्ति मेरे लिए शत्रु बन जाएगा. तो इसलिए हम लोगों के इतने शत्रु रहते हैं, राइट? तो हम लोग जब वो उन लोगों से दूर हो जाते हैं, शत्रु किल करने का मतलब जरूरी नहीं है कि हम उतने दानवी तो नहीं है कि हम लोगों को मार रहे हैं, राइट? दिस इज टॉकिंग अबाउट रियली criminal people who are killing their enemies, and then he thinks that okay, I will kill any other person who stands in my way, I'll kill any other enemies who come in my way. For us, the context is that we basically treat people as enemy or as somebody who's not who's bad, you know, good or bad की हम definition बना के रखते हैं. And then when we completely kind of dissociate from them, and then we say, okay, we have killed our enemies, right? So that is a tendency of a demon, कि लोगों में शत्रुता देखना, लोगों के प्रति शत्रुता रखना, ठीक है? तो लोगों में fault finding नहीं करना, लोगों में अपना क्या कहते हैं, selfish desires पूरी नहीं हो रही है उनसे, तो उनसे शत्रुता रखना, राइट? दैट इज ऑल डिमोनिक, ठीक है? कि अगर हमारा किसी से काम निकलता है तो वो हमारा दोस्त है, अगर हमारा किसी से काम नहीं निकलता तो वो हमारा शत्रु है. ये जो नेचर है ये डिमोनिक है, राइट? देन ही थिंक्स आई एम द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग. ही सेज, ये हो गया असौ मया हता शत्रु, कि मैंने अपने शत्रुओं को मार दिया है और आगे भी जो शत्रु आएंगे उनको मारते रहूंगा. ईश्वरो अहम, वो कहता है, डिमोनिक पर्सन कहता है मैं ही ईश्वर हूँ, कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, जो भी चीजें हैं, जो भी मैंने जैसे धन बनाया है, जो भी है वो मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ही कंट्रोलर हूँ, मेरी फैमिली का, मेरी लाइफ का, मेरी बॉडी का, हर चीज का मैं ही कंट्रोलर हूँ, मेरे ऊपर कोई कंट्रोलर, कोई हायर पावर या अथॉरिटी नहीं है. आई एम द कंट्रोलर. ईश्वरो अहम, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, मैं ही कंट्रोलर हूँ. अहम भोगी, मैं ही भोगता हूँ, मतलब मैं ही इंजॉयर हूँ. तो जो भी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ वो मैं अपने ऊपर या अपने लोगों पे ही लगाऊंगा, उसको भोग करूंगा. तो भोगी की टेंडेंसी है, नॉट योगी की, भोगी की टेंडेंसी है हर चीज को इंजॉय करना फॉर आवर ओन ग्रेटिफिकेशन, वेदर सेंसुअल और मटीरियल और इंटेलेक्चुअल ग्रेटिफिकेशन, मेंटल ग्रेटिफिकेशन. दैट भोगता, भोगी मेंटालिटी इज देयर. अहम भोगी, अहम ईश्वर, अहम भोगी. सिद्धो अहम, आई एम परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, राइट? कि मैं सबसे बेस्ट हूँ. अपने आप को परफेक्ट समझना कि ये चीज मैं सबसे बेस्ट करता हूँ, और अगर कोई हमसे बेटर आ जाए उस फील्ड में तो उससे हम फिर
envy करते हैं, right? मत्सर्य करते हैं, jealous हो जाते हैं, right? Because we think we are the best, है ना? So I'm the best, सिद्धो हम। बलवान सुखी, और बलवान सबसे पावरफुल भी मैं ही हूँ, सबसे सुखी भी मैं ही हूँ। अब अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए हो इसमें किसी व्यक्ति का, तो द बेस्ट एग्जाम्पल, एंड प्रभुपाद गिव्स दिस एग्जाम्पल later on in one of the purports, is that of Ravan. So अब रावण तो एक बहुत हाई क्वालिटी का demon है, right? He is very advanced demon. But we should not think, okay, we are not Ravan, we are not Hiranyakashipu. We should see if we have these demonic propensities in us or not. क्या हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि जब कुछ अच्छा होता है हमारी लाइफ में तो वो मेरी वजह से हुआ, मैंने किया, मुझे कुछ सक्सेस मिली तो मुझे शाबाश करो, मैंने किया वो काम, ऐसा सोचते हैं, तो दैट इज डिमोनिक। क्या हमको भी ऐसा होता है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु नहीं है, ये मेरा फ्रेंड है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फ्रेंड है, ये एनिमी है, ऐसे हम लोगों को करते हैं कैटेगरीज में पुट, तो वो डिमोनिक है, राइट? सो वी मे नॉट बी दैट level of demon as Ravan or Hiranyakashipu, but we have to seek out our own demonic qualities and see if we can weed them out, because they are not dear to Krishna. The main point is that these qualities, subtle qualities that we are harboring, subtle demonic qualities that we are harboring inside us are not dear to Krishna, right? And we want to engage in service of Krishna. We want to become dear to him. We want to please him, right? So to please him, we have to get rid of some of these demonic qualities. Then the next thing, do we also think we are the controller? Do we also think I'm the enjoyer? I'm the best, and I'm so happy and powerful, and everything is in my control, right? So then all those things are considered demonic. Let's discuss this last verse, then we'll take everybody's realizations on this. Then what else does this person thinks? He says, oh, I have the best relatives. I'm surrounded by such aristocratic relatives. Now relatives could be anything. It doesn't mean relatives only. It could mean my society, my country. जैसे कईयों को इसका भी दम रहता है, अहंकार रहता है कि ओ मैं तो यूएस में हूँ, मैं मेरी इतनी बड़ी पावरफुल नेशन, डेवलप्ड कंट्री, तुम कहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हो, डेवलपिंग कंट्री। लोगों को बहुत, हमारी स्टेट में आ जाओ, हमारी स्टेट सबसे अच्छी है, हमारा कम्युनिटी सबसे अच्छी है, हमारे लोग बहुत पावरफुल, यहाँ पे एरिस्टोक्रेटिक, वेल्दी, पावरफुल, रिच लोग रहते हैं। इस तरीके का जो हमें अभिमान एक रहता है अपनी इस material association पे, not spiritual, we're not talking about devotees, this is all in terms of material understanding, right? भौतिक जगत के बारे में बात कर रहे हैं हम कि अब हमारा ही देश अच्छा है, हमारे ही रिलेटिव्स, हमारे ही फ्रेंड सबसे अच्छे हैं, जो हम करते हैं वही सबसे बेस्ट है, तो मैं अहम, राइट? दैट इज कॉल्ड अहंकार, जिसमें अहम बहुत ज्यादा रहता है, उसका मतलब अहंकार है। So that ahankar is not good either. कि मेरे I'm surrounded by such aristocratic, rich, wealthy, influential people or relatives. Then look at this line. This line, I find this very funny. Krishna says, the demonic person says, Ko anyo asti sadrisho maya. Ko anyo. Who else? Who anyo means who else? Asti is sadrisho maya, is better than me. Who else is there like me? There is nobody like me. So, right? We've heard this line so many times, right? Who is there like me? Nobody is there like me. Ka anya sadrisha, like me. We've probably said this line ourselves many times. There is nobody like me. So ko anyo asti sadrisho maya. मेरे जैसा कौन है? ऐसा बोलता है demon व्यक्ति कि मेरे जैसा कौन है? Yakshay dasyami modishya. So he says that I will enjoy everything. I will do some sacrifices. So this line, he says, I will do some sacrifices. I will do some charity, and I will rejoice. But what this means is, some rich people or demonic, powerful people, not demonic, but some people think, okay, let's just do some religious practices or some sacrifices and some good work like charity to lord it over the other people. कि उससे हमारा नाम और फेम, ख्याति और बढ़ेगी, सब लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगी। अच्छा, इन्होंने ये हॉस्पिटल का ये फ्लोर दान में दिया, इन्होंने इतने बेड्स दान में दिए, इन्होंने ये ऑर्फनेज में इतने पैसे दिए, और हमारा नाम लगाओ, प्लेट पे लिखकर नाम लगाओ,
कि हमने इतना बड़ा दान दिया है, ताकि वो पुश्ते याद रखेंगे हमारी, हमने ये बेंच बनाया है गार्डन में, उस पे हमारा नाम ऐसे होना चाहिए, डोनेटेड बाय so and so. So I will give some charity, and in this way I will even get more puffed up. I'll puff up my ego, my false prestige more, right? So charity dena galat nahi hai, lekin to do that indirectly for your own sense gratification, ultimately that is not recommended, right? That is not in that is in mode of ignorance basically. So that kind of sacrifice ki kuch religious practices bhi karunga, usse bhi log मेरी तरफ इन्फ्लुएंस होंगे, तो इस तरीके से हर चीज को आप अपनी ही सेवा में लगा रहे हो। आपने जो चैरिटी भी की अल्टीमेटली वो आपने अपनी ही सेवा में लगाई है, क्योंकि आपका नाम होगा, आप सबको बताओगे, आप सबको एडवर्टाइज करोगे। ऐसा नहीं कि आपने कुछ कर दिया और आप किसी को बताने, आप सबको पता चलना चाहिए कि मैंने इतना लाख रुपए या इतने डॉलर्स दिए हैं। उसका जब तक हम अच्छे से गुणगान नहीं होगा हमारा, तो वो चैरिटी का कोई फायदा नहीं। इसलिए ऐसी चैरिटी करेंगे, ऐसी सैक्रिफाइस, ऐसी प्रैक्टिसेस व्हिच विल फर्दर pat up, make our false prestige and our ego puff up even more. So that is the qualities of a demonic people. In this way, Krishna says last line, iti agyana vimohita. So in this way, the person is completely bewildered by ignorance. Vimohita, किसी चीज से मोहित, जैसे प्रभु जी का नाम मोहित का मतलब कि किसी इन्फ्लुएंस होना, मोह होना किसी चीज से, अटैचमेंट। लेकिन हमें मोह होना चाहिए मोहन से, राइट? मदन मोहन से, है ना? लेकिन विमोहिता मतलब कि गलत तरह का मोह, गलत तरह की अटैचमेंट, इस भौतिक जगत के लिए, इस बॉडी के लिए, इस बॉडी से रिलेटेड चीजों के लिए, बॉडी की आइडेंटिफिकेशन से अटैचमेंट होना, ये अज्ञान है। तो कृष्णा से इस तरीके के अज्ञान से ये लोग बिविल्डर हो जाते हैं, डेमोनिक लोग कंप्लीटली। So this is mentioned in these 3 verses, the attitude of a demonic person. So this person is basically, if you have to sum it up, you'll understand that this is a very selfish person, very overconfident person. This is the thoughts of a very selfish and overconfident person, right? Who's thinking, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही सब कुछ enjoy करूँगा, मैं ही सबसे पावरफुल हूँ, मेरे ही रिलेटिव्स, मेरे ही फैमिली सबसे बढ़िया है। इस तरीके की overconfident थॉट्स या सेल्फिश थॉट्स जो होती हैं, उनको कृष्णा ने डेमोनिक बोला है। So and there Krishna says that is delusion created by ignorance, by ajnana. So let's take everybody's understanding and reflections on this. See what you understand from this. Who would like to share? Let's see, Hema Mataji, Namita Mataji, Nana Prabhu, anything you would like to add? Nirvi Prabhu. Okay, if not, then let's move forward. मैडम जी, हम तो एक छोटा सा एनजीओ चलाते हैं, हम तो लोग रोजाना देखते हैं। डेफ बच्चों का एनजीओ चलाता हूँ, करीब 45 बच्चे हैं। तो किसी को अगर कुछ देना है बच्चों के लिए, तो नाश्ते में चाहे तो समोसा और एक केला दिया, लेकिन वो फोटोग्राफी इतना करेगा, दूसरे दिन पेपर में छपवाएगा। तो ये जो मोहग्रस्त होते हैं लोग कि हमने ये किया, हमने डेफ बच्चों को खाना दिया, हमने डेफ बच्चों को ये किया, तो ऐसे व्यक्ति भी बहुत है संसार में कि जो करते थोड़ा है लेकिन दिखाते बहुत है। वो भी इस कैटेगरी के, आपने जैसे बताया कि चैरिटी करना, तो एक हाथ से चैरिटी किया तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल के लोगों में तो ऐसा है कि चैरिटी किया तो उसका ढिंडोरा बहुत पीटते हैं लोग। ये असुरी प्रवृत्ति का जो आपने दिया उदाहरण, उसी में से एक है। बस यही शेयर करना चाहता था। यस प्रभु जी, आपने तो बिल्कुल अपने लाइफ में से दिया एग्जांपल। यस, सो वही दिस इज
the internal need for like appreciation, acknowledgement, है ना, और वो हम सब में है कहीं ना कहीं. हम लोग भी अपने घर में जैसे काम करेंगे तो बताएंगे, दूसरे को पता होना चाहिए कि देखो मैंने ये किया, उसकी अप्रिसिएशन या उसका एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए, नहीं तो काम उसका क्या फायदा, है ना. तो ये हम भी थोड़ा बहुत करते हैं, हर कोई, हर किसी में है थोड़ी नीड फॉर दिस, कि लेकिन उसको धीरे धीरे कम करना है. जैसे जैसे हमें आगे जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, अगर भगवान के तरफ जाना है तो भगवान को चाहिए कि बस सेवा करें, सर्वेंट बने, सेवा करें, और ज्यादा अपने लिए, अपनी सेल्फिश, अपनी सेंस, अपनी मेंटल ग्रेटिफिकेशन है एक तरह की, उसके लिए ज्यादा हैंकरिंग नहीं होनी चाहिए. सो धीरे धीरे यू हैव टू कट डाउन ऑन दीज. तो इसीलिए जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये डिमोनिक, डीमन एंड डिमोनिक क्वालिटीज वाला, सॉरी डिवाइन एंड डिमोनिक क्वालिटीज वाला, तो ऐसा नहीं सोचना कि मेरे ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कृष्णा ने तो मोस्टली डिमोनिक क्वालिटीज बताई हैं. मैं तो इतना बड़ा डीमन तो नहीं हूँ, मैं तो साधना करता हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, भागवतम पढ़ता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, तो मैं तो ऐसा डीमन नहीं हूँ. ये तो रावण, इस तरह हिरण्यकशिपु, कंसा, इस तरीके के लोगों की बात हो रही है. ठीक है, वो बहुत अति है, वो एक्सट्रीम एंड है डिमोनिक नेचर का, लेकिन हमें अपने अंदर से भी कुछ दानवी गुण, आसुरी गुण है, डिमोनिक क्वालिटी, जो सटल में है बहुत, और एक्चुअली सटल वाले ज्यादा तंग करते हैं, और हमें उनको रूट आउट करना है, वीड आउट करना है, उनको धीरे धीरे निकालना है. क्योंकि जो सटल डिमोनिक क्वालिटीज है ना, थोड़ी थोड़ी, किसी के प्रति ईर्ष्या होना, किसी के लिए अप्रिसिएशन मांगना, अपने लिए इस तरीके की जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो लोगों में दिखावा करना अपना, है ना, ये बहुत मुश्किल से जाती हैं और बहुत प्रेवलेंट रहती हैं, इवन डिवोटीज में भी. और ये साधना के लिए, डिवोशनल सर्विस के लिए अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं मानी जाती. तो उनको धीरे धीरे वीड आउट करना है. तो ये चैप्टर एक्चुअली, कोई सोचेगा कि ये मेरे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर हमारे लिए, हमारी, अगर हम ये समझ गए कि हमारे अंदर ये डिमोनिक क्वालिटीज हैं, तो हम उनको निकाल पाएंगे. अगर हम यही समझते रहे हम तो बहुत ऊंचे हैं, हम तो बहुत हाई लेवल पे, तो फिर हम साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ये चीजें हमको बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी हमारी साधना में. सो इस भाव से ये चैप्टर को सुने कि हम क्या, हमारे पे ये चीज, ये क्वालिटी मेरे में कहाँ पे है और कैसे फिट होती है, और क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ किसी सटल तरीके से. तो इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, और हर एक बंदा अगर कोशिश करे तो पॉसिबल है कि कुछ निकल जाए. अदरवाइज ये तो रूट आउट करनी बहुत ही मुश्किल है. ठीक है ना, बिकॉज अब ये हमारी प्रवृत्ति में शामिल हो चुकी हैं. आई थिंक बाय बर्थ ओनली वी नो दिस, कि ये हमने शो करना है, और ये डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे ये दिखावे का जमाना हो गया है. अब तो ये ज्यादा ही हो गया ये सब. चलो ठीक है, वन शुड ट्राई. That's true, very nice. हाँ, तो वही कि हमारे कंडीशनिंग बोलते हैं इसको, संस्कार, हमारी कंडीशनिंग बहुत डीप है, वो कई जन्मों से चल रही है कि ये सब चीजें करने की. तो जैसे एक मैंने पिछली बार कभी डिस्कस किया था कि वन ऑफ द थिंग्स दैट इज रिकमेंडेड इज टू डू वेरी मीनियल सर्विसेज. एक तो उससे ये अनर्थ, ये जो डिमोनिक क्वालिटीज में जाती हैं, कि मीनियल सर्विसेज ढूंढ ढूंढ के करना, कि मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ. जैसे कि सफाई करना, है ना, सोहिनी सेवा बोलते हैं जिसको, मंदिर की या धाम की सफाई करना, जिसमें किसी को पता नहीं कि आप डॉक्टर हो, या आप साइंटिस्ट हो, या आप एस्ट्रोनॉट हो. नहीं, झाड़ू लेके आप सफाई कर रहे हो, लोग आपको कुछ भी बोलेंगे, कचरा आपके सामने फेंकेंगे, कुछ भी, टेक इट, टॉलरेट करना है. तो जैसे, तो धीरे धीरे ऐसी सी चीजों से हम अपने आप को साफ कर सकते हैं, अपने अंदर की गंदगी को. ऐसे मीनियल सर्विसेज करनी चाहिए, बर्तन धोना, जिसमें कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ओ बड़ा अच्छा खाना बनाया. इवन खाने में भी आपको, खाना भी बनाओगे तो, प्रसाद बनाओगे तो बोलेंगे आपको, आपकी प्राइड पफ अप होगी, मैंने बनाया. लेकिन बर्तन धोने में कोई नहीं कहेगा ओ बड़ा अच्छे बर्तन धोए. सो मतलब so do services where your pride is not getting puffed up more, right, which is not very prominent service, which is not really noticeable to many people, and people are not glorifying you for it. ऐसा एक बोला जाता है करने को, एक तरीका. और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट की प्रेयर,
बहुत सीरियसली कृष्णा को सिंसियरली प्रे करना कि मुझ में ये सब अनर्थस हैं, मुझे इस सब चीजों की, मुझे लोगों से द्वेष होता है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे भय रहता है, मुझे ये जो भी अटैचमेंट रहती है, मुझे इन सब चीजों से छुटकारा चाहिए। तो कृष्णा से बहुत सिंसियरली प्रे करना। सो प्रेयर्स आर पावर्स। सो कृष्णा के साथ टाइम स्पेंड करना, द बेस्ट वे वी कैन स्पेंड टाइम इज बाय चैंटिंग। तो चैंट करते हुए कृष्णा को बोलना कि मुझे ये सब चीजें जो आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही हैं, उनको मेरे अंदर से निकाल दीजिए। एंड धीरे धीरे अपनी टॉलरेंस को इम्प्रूव करना, धीरे धीरे अपनी ह्यूमिलिटी को इम्प्रूव करना। Humility is the first thing one needs to surrender to Krishna. बिना humility के surrender is not possible. If there is no humility, then we are very attached to this body and to other things. Yes, Mataji, please share. Mataji. हरे कृष्णा माता जी। ऑन दैट टॉपिक जो है कि दिखावे वाले पे, राइट, इट्स बैड, वी नो, लाइक इट्स नॉट गुड। जैसे नाना प्रभु जी ने कहा कि कोई बनाना भी देता है तो उसको फिर शो करता है, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग इंस्पायर्ड भी होते हैं, लाइक यू नो कि अच्छा इसने इतना किया तो मैं उससे भी ज्यादा करूं, या दिखावे के नाम पे ही किसी का भलाई भी हो रहा है, राइट। लाइक किसी ने एक बनाना दिया तो नेक्स्ट टाइम उसने शो ही किया, बट ठीक है, उसको देखने की वजह से थर्ड पर्सन आएगा 2 बनाना लेके। सो इसको कैसे समझे माता जी, कैसे, लाइक यू नो, नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई, बट इसकी वजह से कुछ लोगों का भला भी हो रहा है, राइट। तो उसको कैसे समझें और कैसे, मतलब स्टिल वी शुड मेक इट लाइक यू नो इन अ बैलेंसिंग वे कि चलो गलत को सही नहीं समझ रहे हैं बेसिकली। तो माता जी अपने इंटरनल मूड पे डिपेंड करता है, भाव पे। इट इज अ वेरी स्लिपरी स्लोप, ठीक है। तो अगर तो आपका मूड यही है कि मैं लोगों को इनकरेज कर रहा हूँ, अपने अंदर सबको पता होता है कि आसुरी गुण है, मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग प्रेज करें, अप्रिशिएट करें, या फिर मैं आई एम जस्ट इंस्पायरिंग पीपल, ठीक है ना। अगर तो इंस्पिरेशन है, ठीक है, इट शुड बी इन अ बैलेंस्ड वे, ठीक है, नॉट स्टार्टिंग दिस। चैरिटी में तो चलता है, ठीक है, चैरिटी में फिर भी थोड़ा बहुत चलता है कि आपने कुछ अच्छा किया, लेकिन देयर आर मल्टीपल अदर वेज पीपल शो ऑफ, राइट। जैसे कि अपना ज्ञान शो ऑफ करना, या अपनी पावर शो ऑफ करना, या अपनी वेल्थ शो ऑफ करना, राइट। And most of those are on material levels. So if things are mostly on spiritual levels, it is recommended to show off. We should, because we are doing service for Krishna. We should show off. क्योंकि जो भी हम कृष्णा की सेवा में करते हैं वो तो हमें लोगों को इंस्पायर करना है, राइट। इसलिए हम सड़क पे खड़े होकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, राइट, क्योंकि हम अपने पूरा वैष्णव वेश में जाते हैं ताकि हम लोगों को इंस्पायर कर सकें कि हम वैष्णव हैं, राइट। हमें देखो, हमें हमारी किताब लो, ये भगवान का संदेश है, राइट। स्पिरिचुअल चीजों में तो चलता है, लेकिन अगर आप मटीरियल चीजों में यू शुड be a little more regulated, क्योंकि most of that is coming from our internal contaminations and not so much from inspiring other people. But अपने internals को देखना होता है, and always we focus more on internals than on externals. आपकी जो अंदर की मनोस्थिति है वो आपके बाहर के उसमें रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर आपके अंदर की डिजायर्स जैसी हैं, आपके अंदर की कॉन्शियसनेस जैसी है, वो बाहर रिफ्लेक्ट होती है typically. But it can be slippery slope, so इसलिए बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। खासकर as a devotee, we try not to show off, and especially on any material endeavors. थैंक यू माता जी। सो इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन, राइट, क्या इंटेंशंस आप कर रहे हैं। हाँ, यस। बहुत सी चीजें गुप्त रखी जाती हैं, उनको गुप्त ही रखना चाहिए, ज्यादा बताना या बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। So that Krishna will also guide you, and you can always seek guidance from senior devotees. थैंक यू माता जी। Okay, let's move on to the next one. Next one we'll read a little bit of Prabhupada's purport also. 16.16. So let's do 16, 17, 18 together actually. अनेक चित्ता विभ्रांता, अनेक चित्ता विभ्रांता, मोहाजा समावृता
मोहाजाल समावृता समावृता प्रसक्त काम भोगेषु प्रसक्त काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च पतन्ति नरकेषु च. Let's read couple more and then we'll read these three together. Bhagavad Gita 16.17. Atma sambhavita stabda आत्मा संभाविता स्तब्धा dhana mana madanvita धनमानमदान्विता yajante nama yagyeste यजन्ते नाम यज्ञे damben avidhipurvakam damben दम्भेनाविधिपूर्वकम्. Let's read one more. 16.18. Ahankaram balam darpam अहङ्कारं बलं दर्पं kamam krodham cha samashrita kamam krodham cha samashrita mamatma paradeheshu मामात्मा परादेषु pradvishanto bhayasuyukha pradvishanto bhayasuyukha. Okay, let's read all these three, 16.17, sorry, 16, 17 and 18. Can three people read? One each? I can read one, Mataji. Yes, Mataji. Hare Krishna. Text 16. Thus perplexed by various anxieties and bound by a network of illusions, they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down into hell. Hare Krishna. I can read next. Yes. Self-complacent and always impudent, deluded by wealth and false prestige, they sometimes proudly perform sacrifices in name only, without following any rules and regulation. Hare Krishna. Hare Krishna. One more. Namita Mataji, you want to read? Yes, sure. Bewildered by false ego, strength, pride, lust, and anger, the demons become envious of the Supreme Personality of Godhead, who is situated in their own bodies and in the bodies of others, and blaspheme against the real religion. Haribol. Both. Okay, so 16. So let's open this. So Krishna is saying this a little bit. Krishna mentioned before also. He says, "Anek chitta vibhranta." Anek chitta. So because the demonic people have a lot of desires, lot of sense gratification they want to do, lot of fruitive activities they want to do. Many. Unki buddhi jaga jaga ja rahi hai, right? They don't have vivasyatmika buddhi. They have avivasyatmika buddhi, right? Remember, vivasyatmika buddhi, those of the devotees, जो जिनकी बुद्धि एक ही तरफ जाती है भगवान की तरफ, लेकिन जो डेमोनिक लोग होते हैं उनकी बुद्धि जगह जगह जाती है, तो उनको अनेक चित्ता विभ्रांता, उनको कई तरह की एंजाइटीज रहती है. पहले भी कृष्ण ने बोला था ना, पहले बोला था कृष्ण ने चिंतम अपरिमेयम, just a few shlokas back, चिंतम अपरिमेयम, that they have unlimited anxieties. तो इसी तरीके से यहाँ पर फिर बोल रहे हैं अनेक चित्ता, बहुत सारी एंजाइटीज या चिंता रहती हैं. They are perplexed by those anxieties. Why? Because they are caught in this network of illusion. Moha jal samavrita. They are caught in this network of illusion. कि दुनिया की सब चीजों में वो घूम रहे हैं, भ्रमित होके इधर उधर घूम रहे हैं. ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ऐसा कर, ऐसा वैसा, सब चीजों में उनका ध्यान है. तो मोह जाल में फंसे हुए हैं, एक नेटवर्क ऑफ इल्यूजन्स में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी एंजाइटीज रहती है. ठीक है. प्रसक्त काम भोगेशु, and they are very much attached to काम and भोग. काम मतलब to lusty desires and भोग, कि उनको भोगना, उनको enjoy करना. They are very much attached. Basically काम भोग means sense gratification. पे बहुत ज्यादा उनकी आसक्ति है, प्रसक्ता, उनकी बहुत ज्यादा attachment है. पतंती नरकेषु च, ऐसे लोग they fall down into hell. So पहले भी कृष्णा ने बोला था कि जो ये डिमोनिक लोग होते हैं, they are कामम आश्रित्य, right? They have taken shelter of their desires.
Kam Krodha Parayana, that they have taken shelter of Kam and Krodha, of their lusty desires and of their uncontrollable, unlimited sense gratificatory desires. So Anek Chitta Vibranta, so they will be perplexed by various anxieties and bound by a network of illusion. So इसका थोड़ा सा purport में पढ़ते हैं. Let's read this part from the purport. Okay, why don't we just read from here, and we'll read here this whole paragraph. Actually, let's read this whole paragraph. Who wants to read? Can I? Yes, go ahead. माता जी आप पढ़ेंगे? नमिता माता जी, it's okay. अब माता जी आप पढ़ लीजिए, that's okay. अच्छा, ठीक है. The demoniac man knows no limit to his desire to acquire money. That is unlimited. He thinks only of how much assessment he has just now and schemes to engage that stock of wealth further and further. For that reason, he does not hesitate to act in any sinful way, and so deals in the black market for illegal gratification. He is enamored by the possessions he has already, such as land, family, house, and bank balance, and he is always planning to improve them. He believes in his own strength, and he does not know whatever he is gaining is due to his past good deeds. He is given an opportunity to accumulate such things, but he has no conception of past causes. He simply thinks that all his mass of wealth is due to his own endeavor. A demoniac person believes in the strength of his personal work, not in the law of karma. According to the law of karma, a man takes his birth in a high family or becomes rich or very well educated or very beautiful because of good work in the past. The demoniac think that all these things are accidental and due to the strength of one's personal ability. They do not sense any arrangement behind all the varieties of people, beauty, and education. Anyone who comes into competition with such a demoniac man is his enemy. There are many demoniac people, and each is enemy to others. This enmity becomes more and more deep between persons, then between families, then between societies, and at last between nations. Therefore, there is constant strife, war, and enmity all over the world. Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji, want to share anything from this paragraph you just read? Yes, Mataji. So basically, it is all starting with the self thought कि कैसे हम सोचते हैं अपने बारे में कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं करता हूँ basically, and there is no hand of Krishna, and also such people like don't know anything about law of karma कि उनके पिछले जन्म का भी ये कर्म हो सकता है, अगर अच्छा हुआ या बुरा हुआ. So basically they are not aware of anything that is happening, why it is happening. और या सो उनको ये भी नहीं पता होता है कि अगर रिच फैमिली में जन्म हुआ है तो क्यों हुआ है, या फिर the beauty or the wealth, whatever it is, they just don't know why it is happening. They just give themselves the credit for everything that is happening. Yes, thank you, Mataji. Yes, you summarized it all. So yeah, so they don't see Krishna's arrangement. They don't know the rule of karma, right? They don't know that अगर उनको अभी अच्छी body मिली है, healthy हैं, अच्छी family में birth हुआ है, बहुत सारे resources मिले हैं जिसकी वजह से वो education कर पाए या कुछ profession में कुछ बन पाए, तो वो उनके previous good deeds की वजह से है, right? तो अब क्या है, ऐसे लोगों ने क्या किया, उनको इतना अच्छा सब कुछ मिला. अब हमारे पास दो choices हैं, हमें तो present देखना है, present and future देखना है, right? Past नहीं देखना. अब आपको इतना अच्छा सब कुछ मिल गया, आपकी फैमिली बढ़िया, आपकी हेल्थ बढ़िया, आपको वेल्थ, रिसोर्सेज, एजुकेशन. अब आपको ये सब चीजों को यूज करना चाहिए था फॉर इन द मोड ऑफ गुडनेस, इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड्स पीपल, राइट? रादर आप इन सब चीजों से बहुत पफ अप हो गए. तो दो सिचुएशंस हो गई. एक तो ये है कि आपने वो सब चीजों को यूज करना शुरू किया इन सर्विस ऑफ कृष्णा, इन सर्विस ऑफ द
devotees or in service of the world, in service of the people of the world, right? ताकि सब लोग जो है भगवान की तरफ आगे बढ़ सकें, खुद भी आगे बढ़े और सब भी भगवान की तरफ आगे बढ़े आपके साथ। एक तो ये choice थी आपके पास, because we have choice, right? We have free will, so we have been given the choice. दूसरी choice ये थी कि ये सब चीजों को आपने you let them go to your head, कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, इतना एजुकेटेड हूँ, मैंने इतनी डिग्रीज हासिल की हैं अपने बलबूते पे, इतने पैसे कमाए हैं, इतनी लैंड, वो सब आपके you let it go to your head, and on basis of that you just got entangled in this world more. आपको उस विद्या को लेकर, उस रिसोर्सेस को लेकर, उस पैसे को लेकर इस दुनिया से खुद भी निकलना था और लोगों को भी निकालना था, अपने डिपेंडेंट्स को भी निकालना था और जो भी आपके लोग हैं उनको निकालना था। लेकिन आप खुद ही उस दुनिया में, संसार में और फंस गए, आपने अपने आप को भी इसमें और घुसा लिया, एंटेंगल कर लिया, और दूसरों को भी अपने पाप कर्मों के साथ एंटेंगल कर लिया, राइट? आपने अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में जुट गए, और कैसे हासिल करूं और कैसे बनाऊं, लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपको कभी ये पता नहीं चला कि दिस वाज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। यू हैड a good foundation, you were given good resources because of your past deeds. You could have gone in direction towards Lord, you could have gone on spiritual path and be free from cycle of birth and death. Rather, now you have degraded yourself. Now you are going towards lower planets, towards lower species, right? तो आपने अपने आप को डिग्रेड कर लिया। तो इसीलिए प्रभुपाद ने हमको ये वार्निंग दी थी कि जब आपके पास एक बार ये भगवत गीता का ज्ञान आ जाए तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि then you should try to get out of this cycle of birth and death in this lifetime only. क्यों? क्योंकि आगे की कोई गारंटी नहीं। जैसे अब हमने ये सब किया, हो सकता है हमको आगे कोई बहुत अच्छी पोजीशन मिल जाए, हम लोग स्वर्ग में चले जाएं या किसी और बहुत अच्छी फैमिली में पैदा हो जाएं, और वहां तब जाकर हमको अगर ये ज्ञान दोबारा याद नहीं आया तो हम भी अपने आप को ऐसे ही सेंस ग्रेटिफिकेशन में दोबारा डिग्रेड कर सकते हैं, राइट? वी कैन get degraded again, we can get entangled in the material world again. तो इस संसार में हम दोबारा फंस जाएंगे। इसलिए इसी लाइफ टाइम में प्रभुपाद ने बोला कि जब मिल गया नॉलेज तो यहाँ से निकलो, सबको भी लेके चलो। तो इसलिए निकलना है, ये नहीं सोचना कि कोई फर्क नहीं पड़ता। Don't take it loosely, don't take it lightly. Get intense, right? Get strong about this path. Because आगे का कोई भरोसा नहीं, आपके अच्छे कर्म and all will take you to a very good position, but then you will degrade yourself again. So this is the point I wanted to make from this particular verse, that if we are just entangled in this world, तो बहुत सारी anxieties रहेंगी, हम उसके network of illusion में फंसे रहेंगे और just अपनी desires को पूरा करने में लगे रहेंगे. And those people will fall down into hellish planets. Like Krishna says, patanti narkesh ashuchau. Ashuchau means unclean. Unclean मतलब जो inauspicious, unclean, hellish planets हैं या lower species में हम चले जाएंगे। तो हमको इस माया जाल में नहीं फंसना है, right? इस अनेक चिंताओं वाले भय से परिपूर्ण संसार में नहीं फंसना है। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि संसार में तो रहो लेकिन संसार के मत हो जाओ, राइट? यहाँ पे अपना घर मत बनाओ। हम लोग यहाँ पे घर बनाने लग जाते हैं। अपना घर का मतलब I'm not talking about घर, I'm talking about keep thinking this is my permanent situation. This is not our permanent situation. This is not our घर. It's like going to a resort or a hotel for a week and thinking this is my house, and you start living there like you live in your house. So that, but you will be thrown out of the hotel after a week. So you will also be thrown out of this temporary residence after this body is over. So don't make this your permanent home. The next one, let's take these two quickly, and then we can see if anybody has any question. So again, Krishna is further describing the कि क्या सोचते हैं डिमोनिक लोग। ये लोग क्या होते हैं? आत्मसंभाविता मतलब सेल्फ कंप्लेसेंट, कि अपने अंदर फॉल्स कॉन्फिडेंस रखना। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग चीज होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट इन सेल्फ कि सब कुछ मेरे ही बल पे होता है, वो वाला कॉन्फिडेंस होना, दैट इज आत्मसंभाविता, सेल्फ कंप्लेसेंट, अपने में कंप्लीटली सेटिस्फाइड। नॉट ये सेल्फ रियलाइज लोग नहीं है जो अपने में सेटिस्फाइड है, ये वो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि मेरे से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता, आई एम एवरीथिंग, राइट? जैसे पहले एक लाइन बोली थी कृष्ण ने। and they are स्तब्ध मतलब impudent,
एंड धन मन मदान्विता। मदान्विता का मतलब कि धन और मान में जिनकी पूरी कंप्लीटली डिल्यूटेड हैं, जो मत्सर्य होता है ना, नॉट मत्सर्य, मद होता है ना, मद होता है किसी चीज का इंटॉक्सिकेशन, जो धन और मान की जिनको इंटॉक्सिकेशन है, मद है जिनको, उसको बोलते हैं धन मान मदान्विता बोला कृष्णा ने, कि जिनको वेल्थ का और प्रेस्टीज का बहुत ज्यादा मद है, बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेशन है। जैसे कोई अल्कोहल पी के मद में चले जाता है, वैसे ये लोग धन और मान से मद में चले जाते हैं। And these people are also doing some yajna, some sacrifices, but they do only in the name. Naam yajna matlab, it doesn't mean that they're doing Hari Naam yajna. No, they're not doing Hari Naam. They're doing Naam in name only. They do the yajna. So Naam means, look at this. Naam means in name only. मतलब show off करने के लिए सिर्फ यज्ञ करते हैं। और दम्भेन, दम्भ में आके, like proud, false prestige में आके, they do even yajnas and all, but only in the name, and they do it avidhi purvakam. Avidhi matlab बिना proper विधि के, बिना proper scriptures के rules and regulations follow करते हुए, they do avidhi purvakam these kind of sacrifices in the for the namesake only, and they're very deluded by their wealth and false prestige, and very self-complacent or overconfident and impudent. So I think we have discussed this concept अच्छे से. Only thing I discuss about is false confidence होना. False confidence का मतलब कि artificially सोचना कि मैं बहुत बड़ा हूँ दूसरे लोगों से या भगवान से, या भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, और सोचना कि मेरे पास हमेशा यही कंपेयर करना कि मेरे पास उससे ज्यादा वेल्थ है, या उससे ज्यादा अच्छी कोई बॉडी है, या अच्छे फैमिली है, या प्रॉपर्टी है, व्हाटएवर. सो इस तरीके का फॉल्स कॉन्फिडेंस होना, क्योंकि ये सब चीजों में हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए. ये सब चीजें टेम्परेरी हैं, दे कैन बी टेकन अवे एट एनी मिनट. वी शुड हैव कॉन्फिडेंस ओनली इन कृष्णा. That is the true confidence. Having confidence in Krishna's abilities and protection, not in our own abilities. कि मैं अपने दम पे सब कुछ कर लूंगा. That is not the true confidence. The true confidence is कि I just have to act in service of Krishna. I just have to do this action, and Krishna will carry this for me. Krishna will do it for me. Just like Arjun. कि गांडीव तो मेरा, लेकिन कृष्णा की वजह से वो चलेगा, right? And when Krishna took the power away, the Gandhi would not work, right? So Arjun had that kind of faith in Krishna, ki having confidence in Krishna's abilities and protection. Neither having superiority complex, right? Nor even inferiority complex. To think कि मैं तो बहुत मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ये कर ही नहीं सकता. ये भी एक तरह की false ego है. ये भी एक तरह की का अहंकार है. Can anybody explain that? कि inferiority complex होना कैसे अहंकार है? Did anyone understand that? Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. So, as I understand, I think it's about अपने आप को हमेशा कम समझना and नीचे समझना. That will also deteriorate the power, like, or the energy that Krishna has given you. लेकिन how is that अहंकार? How is that false ego? How is that false ego? नहीं पता माताजी. So माताजी, false ego क्या होती है? Let's start from जो हम नहीं हैं उसके बारे में सोचना, वैसा एक इमेज बनाना जो हम नहीं हैं. So according to scriptures, false ego क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं कि subtle body is made of मन बुद्धि अहंकार, right? False ego is अहंकार, right? So what is false ego? False ego means having a bodily conception, right? To think that I'm this body, right? Yes. To think that I'm this body is the false ego, right? So अहंकार क्या है? हमारा अहंकार क्या है कि हम ये बॉडी हैं. To think this I'm this body is the false ego. So जब कोई superiority complex होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मतलब वो अपने ऊपर अपनी बॉडी पे रिलाई कर रहा है. वो ये कहता है कि मैं मतलब मेरी ये बॉडी, I can do this, right? With my own abilities, with my own, not really relying on Krishna. Inferiority complex भी bodily concept है. ये सोचना कि मैं ये नहीं कर सकता, ये भी एक bodily concept है. ये सोचना कि मैं ये क्योंकि अगर कृष्णा चाहे तो वो हमसे कुछ भी करवा सकते हैं. Remember? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम. कि मूक बंदा, a dumb person can start speaking, he can start singing. Pangum langhayate girim. The
lame person can cross mountains. Pangum langayate girim yat kripatam ham vande, right? कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वो कुछ भी कर सकता है, right? So to think that I cannot do something, right? जैसे कि मैं सोचूं कि मैं तो ये भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी, मैं मुझ में तो वो नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, ये नहीं है, लेकिन हाँ मुझ में तो नहीं है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं कृष्णा के बल पे, मैं गुरु के बल पे कर सकती हूँ, ठीक है? दैट इज ट्रू कॉन्फिडेंस। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होना, कि सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, डिप्रेशन में ऐसे डिप्रेस होना, that is also a concept of body only. That is also just relying on your own abilities, relying on your own body and bodily identification. That is false ego. So that is called, that is also false ego. Isliye neither superiority nor inferiority complexes is the quality of a devotee. So for a devotee, we have to be humble, but not falsely humble, not false humility, not false confidence, right? Just कि जो कृष्ण इच्छा, जो हरि इच्छा, वो हो पाएगा। तो मैं अपनी तरफ से अपना प्रयास करूंगा हर चीज में। इफ आई बीन गिवन अ सर्विस, आई एम गोइंग टू डू माय एफर्ट, आई एम गोइंग टू मेक माय एफर्ट, राइट? और हो सकता है मैं उस चीज में बहुत अच्छा भी हूँ, लेकिन अगर कृष्णा की मर्जी नहीं हुई तो वो काम ठीक से नहीं होगा। चाहे मैं उसमें बिल्कुल बेस्ट भी हूँ, तब भी वो काम अच्छा नहीं होगा अगर कृष्णा की इच्छा नहीं हुई। और अगर मैं उसमें वर्स्ट भी हूँ, लेकिन अगर कृष्णा चाहेंगे तो वो बेस्ट भी हो जाएगा वो काम। सो दैट इज द ट्रू कॉन्फिडेंस। सो ये कॉन्फिडेंस डिवोटी को होता है, लेकिन जो डिमोनिक लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस रहता है अपनी आत्म संभाविता। दे आर इम्प्यूडेंट एंड दे जस्ट रिलाई ऑन देयर ओन abilities and resources and everything. And so they engage in yagyas, but avidhi purvakam, that we have discussed, कि they may do some sacrifices and some charities, but they do it without proper rules and regulations, not following scriptures, because they don't have faith in scriptures. Then the last one for today, let's take this very quickly. अहंकारम बलम दर्पम, तो उनको क्या है, अभी उनकी क्वालिटीज हैं, हमने अभी सुना। अहंकार मतलब फॉल्स ईगो है, बलम मतलब स्ट्रेंथ, दर्पम मतलब प्राइड है, कामम मतलब लस्ट रहती है, क्रोध एंगर, and they have taken shelter of all of these things. So they are completely dependent on just all these things, on their own false ego, on their own strength, on their own pride, their desires, their anger. That is what drives them. That is their motivation. That is their that is where they derive their ability to do anything. Mam atma para dehishu. So then Krishna says, they don't even they're envious, or they don't even believe or have faith in me, who is the supreme personality of Godhead sitting inside them, कि मैं उनके अंदर हूँ, माम आत्मा है, उनकी अपनी देह में हूँ, उनकी बॉडी में हूँ, लेकिन उसको, उस सुप्रीम लॉर्ड पे भी वो को भी वो ब्लास्फीम करते हैं, एनवियस रहते हैं उनके अगेंस्ट। प्रद्विषंतो अभयासूय का मतलब कि अभयासूय का मतलब एनवियस रहते हैं अगेंस्ट द लॉर्ड ऑल्सो, who is all pervasive, who is the person, who is the Paramatma within them and without them, and everywhere they are envious of that Supreme Lord, and they blaspheme the Lord and the religion described by the Lord. So basically they think that they're independent. They think themselves independent and powerful in every action that they do. So they're just कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई हमारा मेंटेनर कंट्रोलर नहीं है, हम चाहेंगे तो हमारी इच्छा से ये काम होगा या नहीं होगा, right? But devotee is dependent on Krishna. Devotee knows that he's controlled by Krishna, he's maintained by Krishna, right? He's always listening to Krishna within, again internally situated रहता है वो, and not really worried about external so much. So these are the qualities, ahankar, balam, darpam, kamam, krodham of a demonic person. He's envious of the Lord and blasphemes the true religion. True religion क्या होता है? True religion is धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो होता है जो भगवान को प्रसन्न करता है, जो भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। धर्मम तु भगवत साक्षात प्रणीतम मतलब कि जो भगवान को ही खुश रखता है वो धर्म होता है। So there is no other dharma. All the dharma is supposed to please the Lord. And how can we please the Lord? Arjun pleased the Lord by fighting, right? Even if you have to lie, जैसे कि युधिष्ठिर महाराज को कृष्णा ने बोला कि झूठ बोलो, अश्वत्थामा मर गया, right? So okay, that will please Lord. So okay, so whatever we do for the pleasure of the Lord,
right, is dharma. So ऐसा नहीं है कि झूठ बोलने से वो अधर्मी हो गए युधिष्ठिर महाराज. He's the emblem of dharma. युधिष्ठिर महाराज is धर्मराज. Right? So इस तरीके से जो भगवान को खुश करता है, that is dharma. And Krishna is saying that these people they blaspheme the true religion. So that's where we'll stop. Please share your thoughts, questions, realizations, corrections, experiences, anything. Namita Mataji or Prinka Mataji, Hima Mataji, anybody wants to share anything? Hare Krishna, Kiran Aunty, Namaste. I think हरे कृष्णा बेटा, हाउ आर यू? I'm good. आप कैसे हैं? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ बेटा. मैंने अभी आपको नोटिस किया, आई थिंक अतुल प्रभु की क्लास कैंसिल हो गई आज. अच्छा. उन्होंने लिखा, लेकिन we were just discussing 16th chapter. Please, ओके. if you want to share anything, please share. अभी आई एम लिसनिंग. Okay. एक्चुअली आई एम नॉट. Sure. So, okay, before we finish, I just had another thought I wanted to share with you. So, maybe somebody can answer and I'll share my understanding. We are reading about this divine and demonic nature, right? So, ये demonic nature जो हैं, they seem very easy, right? कि जैसे लोग गुस्सा करते हैं, अनक्लीन होते हैं या लालच होता है, ये सब करना तो बहुत आसान है, राइट? सो व्हाई इज इट कि ये जो डिवाइन क्वालिटीज हैं ये इतनी मुश्किल क्यों है? ये इनको तो कल्टीवेट करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है. और डिमोनिक क्वालिटीज जो हैं तो बहुत आसान है. जैसे गुस्सा करना तो बहुत आसान है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है. अनक्लीन रहना तो बहुत आसान है, लेकिन क्लीन रहने के लिए तो नहाना पड़ता है या और कपड़े चेंज करो, बट कपड़े ना चेंज करना तो बहुत आसान है. तो ऐसा क्यों है? ये हर चीज में, कोई भी चीज ले लो, कोई भी डिमोनिक क्वालिटी पिक, भगवान पे विश्वास ना करना बहुत आसान है, लेकिन विश्वास करना और स्क्रिप्चर्स के वो करना फॉलो मुश्किल है. So what is this? Why is it? Yes, Mataji. Mataji, I can say this much is like path, because all the divine qualities leads to Krishna. So path to Krishna is a hard path. Like it's difficult to follow that path, and that's why to have those divine qualities is difficult. It's a lot to sacrifice, so path to Krishna, that's what makes you humble. It's hard. It's a difficult path, and so that's why those are all difficult qualities to do. Instead of the demonic path is really easy, So I think in a nutshell, it's just this, how I get it. It's path to Krishna is difficult, and we have to cross these difficulties. We have to cultivate certain qualities in ourselves to get to Krishna. It's not an easy path, but we need to get we need to cultivate those divine qualities in us, and it makes you much more humble. So that's how I look at it. Yes, माता जी, एक क्वेश्चन मैं आप पूछना चाह रहा हूँ. Yes. अगर कृष्णा का पाथ इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, like if it's so difficult, तो फिर बाकी जो हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे काम करते हैं और कृष्णा कॉन्शियसनेस के तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या रह गया सर? मुझे तो लगता था कि गॉड हमें एम्ब्रेस कर लेता है लाइक अ मदर, तो वो तो चाहता है कि हम उनकी तरफ बढ़ें. अगर उनका पाथ इतना डिफिकल्ट है तो मैं क्यों, मतलब कि मेरे को क्यों इतना एफर्ट करना पड़ेगा? मैं तो थक जाऊंगा. I'll get tired. Yes, Prabhuji, very nice. So Prabhuji, इसका simple answer ये है कि the path is simple for the simple. जितने हम सादे, सिंपल, साधारण लोग बन के रहेंगे, उतना हमारे लिए आसान रहेगा. प्रॉब्लम हमें मुश्किल क्यों जाती है? क्योंकि हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं.
हम लोगों को फेथ आसानी से नहीं होता, हम लोगों को का ध्यान नहीं लगता, हम लोगों ने बहुत सारी एंग्जाइटीज पाली हुई हैं, बहुत जगह पैर फंसाया हुआ है। तो प्रभुपाद से भी किसी ने यही क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने यही बोला था, आंसर उनका ये आंसर था कि दिस पैथ इज सिंपल फॉर द सिंपल, मीनिंग कि इट इज वेरी इजी if you are a simple person, and all this that we are reading is trying to make us that simple person कि इसलिए बोलते हैं ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अगर हम सिंपल लिविंग हो जाए हमारी, जिसमें हमारी बहुत ज्यादा इधर उधर हम फंसे नहीं हों, तो हमारा पाथ बहुत स्ट्रेट, पाथ बहुत आसान है प्रभु जी। पाथ क्या है, उसमें प्रसाद खाना है, ठीक है, भगवान के नाम का जप करना है, ऐसे डिवोटीज के साथ बैठ के इतनी बढ़िया भगवत गीता और भागवतम पढ़नी है, इतने बढ़िया बढ़िया गाने गाने हैं, तो पाथ तो बहुत आसान है। और ये करते करते अपने आप ये सारी कंटामिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो निकल जाती हैं, वो सब अपने आप धीरे धीरे सफाई हो जाती है। तो पाथ तो भक्ति का मार्ग तो बहुत आसान है। और आपने बिल्कुल सही बोला, भगवान, हम एक कदम लेते हैं भगवान की तरफ तो भगवान 1000 कदम लेते हैं, बिकॉज ही इज अनलिमिटेड, ही इज एब्सोल्यूट, he doesn't have to, you know, if we just show even our intention कि we want to come towards you, he comes running towards us. So मार्ग बहुत आसान है और इसीलिए हम उस पर स्टिक हो पाते हैं। नहीं तो हम जैसे लोगों का तो जैसे मैं हूँ, बिल्कुल भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि इस पे चल सके, लेकिन चल पाते हैं क्योंकि कृष्णा हमको एम्पावर करते हैं, क्योंकि कृष्णा हमारी तरफ बढ़ते हैं और हमको रियलाइजेशंस मिलती हैं, हमको और भक्तों का संग मिलता है, हमको धीरे धीरे टेस्ट आने लगता है गाना गाने में और श्लोका याद करने में और भगवत गीता और भागवतम पढ़ने में और संकीर्तन करने में और ये सब करने में, प्रसाद खाने में किसको मजा नहीं आता। सो पाथ तो बहुत आसान है प्रभु जी, लेकिन हम जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो पाथ तो मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब चीजें कॉम्प्लिकेटेड लोगों के लिए नहीं है, जिनको बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं, बहुत ज्यादा जो साधारण सिंपल लोग होते हैं, अपने अपने परिवार में किसी ने देखा होगा, जैसे मेरी दादी थी, वो बहुत सिंपल लोग थे, उनके पास कुछ बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं किया होता था उन्होंने, कपड़े भी, खाने का भी, सब कुछ। अब हमने अपनी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेट कर ली है, इसलिए भगवत प्राप्ति बहुत मुश्किल लगती है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस लगती हैं। लेकिन कृष्णा ने जो मार्ग दिया है, प्रभुपाद ने जो मार्ग दिया है, वो बहुत आसान है। So please don't feel like that. This is just to engage you intellectually that I'm asking these questions. Thank you for your question. Does it answer? Hansi, right. I'm just learning. So जैसे आपने बताया, sounds convincing. अच्छा लगा सुन के। देखो, मैं जो क्वेश्चन पूछ रही थी इसका मैं let me try to answer that. तो माता जी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। क्या होता है कि इन दिस वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, राइट? सो इन दिस वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत में टेंडेंसी क्या है? नीचे गिरने की है। जो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी एक तो ग्रॉस लॉ है, लेकिन हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे पर्सनालिटी, हर चीज में भी ये लॉ लगता है कि हमारे नीचे गिरने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। कि जैसे कि इसीलिए सब जो नीचे गिरने वाले लो चीजें हैं वो आसान है करनी, जैसे कि पकड़े रखना मुश्किल है लेकिन छोड़ना आसान है, क्योंकि इसीलिए गुस्सा करना आसान है लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल लगता है। कोई भी चीज है, जैसे मैंने सफाई का एग्जांपल दिया है ना, सफाई करना, या जैसे कि खुशी के बारे में बोलते हैं कि खुश रहना पड़ता है आपको। खुशी जैसे कि किसी सिचुएशन में ऐसा नहीं कि खुशी मिल जाएगी, खुश रहने के लिए अपने अंदर से खुशी निकालनी पड़ती है, हर चीज में ट्राई करना पड़ता है। इरिटेशन होती है, एंजाइटी होती है, नॉर्मली होती है, लेकिन उनको टॉलरेट करना पड़ता है, उनको कंट्रोल करना पड़ता है। तो हर चीज में नीचे गिरने की टेंडेंसी रहती है हमारी। प्राइड आ जाती है, उस प्राइड को कंट्रोल करके हम्बल बनना पड़ता है। तो जो भी अच्छी क्वालिटीज हैं वो करनी पड़ती हैं, और जो भी बैड क्वालिटीज हैं वो अपने आप हो जाती हैं। तो ये इस जगत का, इस भौतिक संसार का, मटेरियल वर्ल्ड का ये रूल है, इस यहाँ का ये लॉ है कि नीचे गिरना, कॉन्शियसनेस को खराब करना आसान है, और कॉन्शियसनेस को उठाना, एलिवेट करना, कोई भी चीज ऊंचा उठाना मुश्किल होती है, इसलिए थोड़ा सा एफर्ट लगता है अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने में।
इसीलिए ये जो डिवाइन एंड डेमोनिक क्वालिटीज कृष्णा ने बताई हैं, इसमें डेमोनिक क्वालिटीज में गिरना बहुत आसान है। इस जगत में गिर जाना, इस जगत की चीजों में घुस जाना, इस यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाना आसान है, और वहां से डिस्ट्रैक्ट ना होकर अपने आप को फोकस करना इस मार्ग की तरफ मुश्किल है। तो बस यही मुश्किल है कि अपने आप को एवरी डे इस मार्ग पे कैसे रखा जाए, बस। and it is very basically it is difficult in the material world to be spiritual, because the material world is designed to be material. ये problem है बस। Mataji, like one thing I would like to say, just like as simple it is, watching movies all day long is very simple, right? Weekend at okay, I want to watch movies, and it's very easy to just watch movies all day, but it's difficult to sit down and chant and okay, aaj mere ko lecture sunna hai, aaj mere ko kirtan karna hai. That's a difficult part, but it's easy to just watch movies and go out and eat, and it's just, that's an easy thing to do, and we all have that tendency. But just to sit down and listen to lectures, or aaj mujhe ye karna hai, aaj mere ko Gita distribution mein jana hai, isme jana hai, that's a difficult thing. So that's how I look at it. It's you always gravitate towards the easier things to do rather than the difficult path. Yes, Anita Mataji, thank you Mataji, that is very nice point. हरे कृष्ण माता जी, मैं ये बोल रही थी कि कुछ भी करने के लिए, चाहे वो निगेटिव भी कर रहे हैं या पॉजिटिव भी कर रहे हैं, उसके लिए टाइम एफर्ट तो चाहिए ही होता है, राइट? इवन जो विलेन लोग होते हैं किसी का खून करने के लिए, कितना सारा प्लानिंग और कितना सारा कुछ करना पड़ता है उसके लिए, राइट? इट्स अ मेहनत, इट्स अ हार्ड वर्क इवन देयर, बट द डिफरेंशिएशन इज दैट कॉन्शियसनेस कि क्या सपोर्ट कृष्णा करेंगे, राइट? तो अगर वो चीज आ जाती है हमारे अंदर, तो वी विल डेफिनेटली पुट आवर हार्ड वर्क टुवर्ड्स व्हाट इज सपोर्टेड बाय कृष्णा. So even Navita Mataji, even the simple example of watching the movie, right? अगर आप ये, इसमें भी तो काम है, इसमें भी एफर्ट है, टाइम वेस्ट हो रहा है एंड ऑल दैट, बट देन अगर कोई जैसे कि हायर लेवल डिवोटीज को आप बोलोगे, दे विल नॉट लाइक दिस, राइट? आई मीन उनको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास ये कॉन्शियसनेस है कि दे वांट टू डिवोट टाइम इन डूइंग मच बेटर थिंग व्हिच इज चैंटिंग. तो मेहनत तो सब कुछ में ही है, बस वो कॉन्शियसनेस को कैसे हम लोग कल्टीवेट करें और कैसे ये करें, लाएं अपने जीवन में. Yes Mataji, very nice point. So yeah, ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला अभी आपने. मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ. पहले मुझे आफ्टर आई गेट डन फ्रॉम माय वर्क, आई ऑलवेज फील टायर्ड एंड आई वांटेड टू हैव अ ग्लास ऑफ वाइन जस्ट टू रिलैक्स. ये मेरे साथ होता था ऐसे, कभी वाइन ले लिया या कभी मैं टायर्ड हूँ, मुझे ये चाहिए. तो अब जैसे जैसे मैंने ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर थोड़ा सा रखा और मैंने वो जॉब किया, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने वो वाइन का ग्लास लिया, तो मेरा तो दिमाग जो है बिल्कुल ही अलग ही लेवल पे चला गया. आई डिडंट फील गुड. सो अपने आप भी वो मुझसे छूट गया. आई डिडंट फील लाइक इट. ये जो चीज है मेरे साथ हुई है. मुझे आई डोंट नो कैसा हुआ. आई यूज्ड टू लाइक अ लॉट, बट नाउ आई डोंट फील लाइक डूइंग इट. ये पता नहीं कैसे हुआ. Yes, Prabhuji, same thing for the movie. I can tell you, I don't like to watch movie as I used to like earlier. So वो हो जाता है. Krishna, like Mataji was telling, Krishna gives that thing. I don't know. This is Krishna's reciprocation, Prabhuji. This is how Krishna is reciprocating with you. तो इसमें टेस्ट आना और दूसरी चीजों में टेस्ट चले जाना, this is the realization. This is a symptom of progress, symptom of taste, symptom of Krishna's realization. तो हम कहते हैं ना कि आपको realizations आने लगेंगी. तो ये realization है एक जो आपने अभी शेयर की, कि ये चीज में मेरा टेस्ट चला गया और इस चीज में टेस्ट आ गया. ये इस चीज से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं स्पिरिचुअल पैथ पे. जैसे कृष्णा में थोड़ा थोड़ा टेस्ट देते हैं अपने पैथ का, तो फिर हमें और मजा आता है, फिर हम आगे आगे बढ़ सकते हैं उसमें. पर वही बात है कि माता जी ने जो बोला कि जो लोग इस दुनिया में भोग भी कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी लगाते हैं, राइट? बहुत एनर्जी लगती है उसमें भी. तो एनर्जी तो आप कहीं ना कहीं लगा ही रहे हो, तो इस पैथ में लगा लोगे तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यहाँ से निकल जाओगे
और उस पाथ में लगा लोगे तो और फंस जाओगे, और कृष्णा क्लियरली बोल रहे हैं कि फिर आप नर्क के वासी बनोगे, राइट? तो हम क्यों ऐसे, हम हमेशा इंटेलिजेंट लोग हमेशा फ्यूचर का सोचते हैं ना, 5 साल बाद हम क्या करेंगे, कहाँ होंगे, हर कोई अपने लिए अच्छी सिचुएशन सोचता है। तो अगर हमको पता चल गया कि हमारी इतनी बुरी सिचुएशन हो जाएगी तो हम वो काम क्यों करेंगे, हम फिर अच्छा करेंगे ना अपने लिए। तो ये इंटेलिजेंस की निशानी है, और कृष्णा के डिवोटी तो बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं। कृष्णा ने बोला है कि मैं इंटेलिजेंस देता हूँ अंदर से, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते, आई गिव द इंटेलिजेंस बाय व्हिच दे कम टू मी। So thank you, Prabhuji. This is very inspiring realization you shared. Thank you for sharing, Arishna Mataji also. I think again, this is जैसे आपने बहुत hit the nail on the head कि हर चीज में we see that कि you have to put in effort even for material progress. कुछ खेलना है तो भी उसमें you have to put in some effort. उसमें भी time लग रहा है, effort लग रहा है. It is just जो हमें आज चीजें simple लग रही हैं, easy लग रही हैं करनी, and they're material things. It's just because we have passed that in those last 50, 35 years, 39 years, 38 years, we have done just that. तो इसलिए वो हमारी आदत बन गई है, तो it has become easy to do that. But important thing is कि we know that now कि that is actually not the best use of time. So why not utilize the time and नई आदतें बनाएं जो कि actually long term में beneficial है. And then eventually they will become, they are actually more enjoyable, have long-term enjoyment, not just short-term enjoyment, and they are beneficial to us. तो बस वो इनिशियली इनर्शिया से बाहर निकलना होता है ना, कि आदत जो बन गई उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नई आदत जब जैसे जैसे बनाएंगे तो एक्चुअली यार सोल की तो कंडीशन ही वो है, राइट? जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास. तो actually that is more constitutional position हमारी, to do the bhakti, to do the chanting, to progress in this path is actually more constitutional, more natural for us. But it's just that we have forgotten it because हम दूसरी चीजें इतनी करते आए हैं कि we have forgotten कि ठीक चीज कैसे करनी है. कहते हैं ना कि गलत इतना करते रहो, अगर आप गलत सीखो, you know that example comes कि मृदंगा का example आता है कि कोई गलत सीख रहा है अगर मृदंगा काफी टाइम से, so he actually needs to pay more to learn because उससे पहले वो पुराना वाला भूलना है. तो हमारी वो सिचुएशन हो गई है कि हमें अपनी कंडीशनिंग, जो गलत कंडीशनिंग है, उसको ब्रेक करने में हमें मुश्किल हो रही है, लेकिन एक्चुअली सही वाला पाथ पे जाना तो बहुत इजी है. थैंक यू प्रभु जी. यार वी वर जस्ट यही दोनों चीजों को टाई कर दिया थी नरेंद्र प्रभु ने अच्छे से, कि जो दिक्कत आ रही है, जो मुश्किल आ रही है, वो हमारी हम कॉम्प्लिकेटेड हैं, हम प्रीवियसली कंडीशनड हैं, इसलिए दिक्कत आती है, ना कि इसलिए कि पाथ मुश्किल है. पाथ तो बहुत आसान है, लेकिन हमने अपने आप को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया, अपनी लाइफ को और अपने संस्कारों को और अपने डिजायर्स को. सो वी हैव टू जस्ट बी सिंपल. कृष्णा लाइक सिंपल. कृष्णा हिमसेल्फ इज त्रिभंग बट ही लाइक सिंपल. So let's stay simple, not get engaged into too much complications of this world, and then the path will become very easy actually. Okay, so we'll stop here. We'll chant one round after this. Mancha kalparibhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaः. Gurve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Hare Krishna.